ज़रूरी नहीं है ऐसा कि बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश से पढ़ना, ये कोई एकेडमिक है नहीं। ठीक है, चलिए। तो लेस देन एल है, इक्वल टू आई है, लेस देन इक्वल टू एन है, ग्रेटर देन जी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम to Banker's Garden Pro. Friends, in today's session I have brought to you 3 questions based on inequality. Those questions have been asked in SBI PO pre-examinations. So let's go and learn how to solve these questions in an exam level approach. So let's go ahead. So friends, how to solve these questions? First of all, read the instructions. If only conclusion 1 is true, mark first number as your answer. If only conclusion 2 is true, mark second. If either conclusion 1 or 2 is true, mark third. If neither conclusion 1 nor 2 is true, mark number 4 as your answer. If both conclusions are true, mark 5 as your answer. Okay. So first of all, we are going to solve first questions. Okay, first question is what? Read the statement. M less than O less than equal to U less than equal to R greater than equal to T, P greater than equal to R less than equal to I less than equal to C less than equal to less than L. There are two statements. Look, first is this and second is this. Now we have two conclusions. Okay, now we have to decide whether the conclusions are true with respect to given statements. Okay, so first of all, look, L greater than M is the first statement. Okay, first conclusion. Okay, so look, how to check L greater than M is true or not true. Look, first of all, we will pick up L. Where is L? There is L. L is here. Okay, L. Look, L is greater than C, greater than equal to I, greater than equal to R, but here less than equal to P. So pick up till R. L greater than R. Will be or not? Yes, it will be. Now look, L greater than R. Okay, now we have to decide whether L greater than M or not. So pick up R from first statement. Look, there is R. Okay, so R greater than equal to U, greater than equal to O, greater than M. So R greater than M definitely will be true, and here L is greater than R. L is greater than R, R is greater than M, that's why L will be greater than M, definitely true. So first conclusion is our true. Now check for second conclusion. Let's go. Look, O less than equal to C. O less than equal to what? C. So we will pick up O from either of the given statements. Okay, wherever O has been given. Look, O is given in first statement, there O. Okay, so O less than equal to U less than equal to R. Pick up till since we have to check O less than equal to C, so R less than equal to C in second statement clearly visible. So O less than equal to R from first statement and R less than equal to C from second statement. That's why O less than equal to C overall will be correct. That's why our both conclusions are true. So mark answer 5 as your answer for the first. Look, okay, answer will be 5 since both the conclusions are true.
Now look for second statement. Okay, let's go ahead. C less than L is equal to I, less than equal to N, greater than G. ये सब दिया गया है, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश में ज़्यादा नहीं करेंगे बात, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसा कि बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश से पढ़ना, ये कोई एकेडमिक है नहीं, ठीक है। चलिए, तो लेस देन एल है, इक्वल टू आई है, लेस देन इक्वल टू एन है, ग्रेटर देन जी है, आई लेस देन एम है, ग्रेटर देन इक्वल टू ओ है, ग्रेटर देन आर है, ग्रेटर देन टी है, ऐसा दिया गया हमारा स्टेटमेंट में, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है सी लेस देन ओ, और दूसरा चेक करना है जी ग्रेटर देन टी। क्या ये सही है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला हम लोग उठाते हैं सी लेस देन ओ और चेक करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्या ये सही होगा। अब हमको सी लेस देन ओ चेक करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सी कहाँ दिया हुआ है स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए सी यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको दिखाना है कि ये लेस देन ओ है, तो ओ देखिए दूसरा स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ओ के लेफ्ट हैंड साइड से मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एम ग्रेटर देन दिखा रहा है, इधर नहीं लेना, उधर का उठाइए। देखिए उधर का एलिमेंट को देखिए, आर है, टी है, और यहाँ पर सी लेस देन क्या है बताइए। आप देखते जाइए तो आपको पता चलेगा कि सी लेस देन एल है, फिर आई उसके बराबर है, तो सी लेस देन आई हो जाएगा, सी लेस देन एन हो जाएगा। जबकि इधर ओ आर और टी में ये कोई भी यहाँ मैच नहीं किया, एल आई और एन है, ओ आर और टी है, कम्प्लीटली डिफरेंट, हो ही नहीं रहा है। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन ओ के देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आई है, जबकि सी लेस देन आई है, तो यहाँ सी लगा देंगे, सी लेस देन आई। अब बताइए सी लेस देन एम हो जाएगा सही, लेकिन ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन क्या बताए थे, जब एक दूसरे के तरफ साइन अगर फेस कर दे तो वो गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये पहला स्टेटमेंट, पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा हम लोग चेक करते हैं, जी ग्रेटर देन टी को चेक करते हैं। देखिए जी ग्रेटर देन टी, हम लोग जी को फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। सब्जेक्ट को देखेंगे, जी या टी किसी को भी, तो जी को फाइंड कर लेते हैं। तो जी देखिए यहाँ पर हमें फाइंड हो गया। अब ग्रेटर देन दिखाना है इसको, तो जी के जस्ट जो सामने है जो इनइक्वालिटी का सिंबल, वो तो आपका लेस देन का है, तो फिर जी ग्रेटर देन हो कैसे सकता है किसी से? किसी से नहीं हो सकता है, बिकॉज एक ही जगह में जी दिया हुआ है यहाँ पर, और वो भी लेस देन दिखा रहा है बाकी एलिमेंट से। तो ये हमारा ऐसे ही यहीं पर गलत हो गया। तो इस तरह से हमारा देखिए दोनों गलत हो गया, तो नाइदर 1 नॉर 2 सही हो गया। तो 4 नंबर मार्क कर देंगे 2 का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 2 का आंसर हो गया। चलिए हम लोग थर्ड को चेक कर लेते हैं इसी तरह से। तो स्टेटमेंट को देखिए, ये दिया हुआ स्टेटमेंट, ये दिया हुआ स्टेटमेंट, हम लोग सीधे कंक्लूजन को उठाते हैं। पी ग्रेटर देन टी है, तो पी ग्रेटर देन टी यहाँ पर देखते हैं पी कहाँ है, तो पी यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड स्टेटमेंट में, फर्स्ट में नहीं दिया है, ठीक है। पी ग्रेटर देन आर है, लेस देन शुरू हो गया। अब हम लोग उधर नहीं जाएंगे, ग्रेटर देन आर तक ही रखेंगे, और हम लोग देखेंगे आर ग्रेटर देन टी कहीं दिख रहा है क्या? आर ग्रेटर देन इक्वल टू टी दिख रहा है, तो ये पार्शियली ट्रू हो रहा है। कैसा ट्रू हो रहा है? ट्रू तो हो रहा है बट पार्शियली ट्रू हो रहा है, और जब पार्शियली ट्रू होता है तो हम लोग उसको डायरेक्टली ट्रू नहीं कर सकते हैं। दूसरा चेक करेंगे कि कहीं आइदर और तो फॉलो नहीं हो रहा है। अगर आइदर और हो जाएगा तो फिर थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा मेरा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज ट्रू। तो P इक्वल टू टी चेक कीजिए, तो P ग्रेटर देन इक्वल टू आर में इक्वल टू आर भी है, आप देखिए ध्यान से, और R ग्रेटर देन इक्वल टू टी में इक्वल टू टी भी है, तो P इक्वल टू टी भी सही हो गया। तो दोनों ही सही हो गया, बट पार्शियली सही हो रहा है। कैसा सही हो रहा है? पार्शियली। ये ध्यान रखना है आपको, यही चीज ध्यान रखना है कि आइदर और कब लगता है, ठीक है। ये आपका पार्शियली ट्रू हुआ, और उसी तरह से 2 नंबर भी पार्शियली ट्रू हुआ। तो जब दोनों सही हो गया और पार्शियली हो गया तो आइदर और लग जाएगा, आइदर और थर्ड नंबर फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा थर्ड नंबर का थर्ड नंबर हो जाएगा आंसर। ध्यान रहे, यही है तरीका सॉल्व करने का इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी SBI PO प्री में ऑलरेडी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर कोई कमी है या फिर कोई
त्रुटि है तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, उसे मैं ज़रूर सुधारने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय बाय।